Good morning class 6. Hope you all are fit and fine. So students, in chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. We already learned about organisms and the surroundings where they live. Habitat and adaptation. A journey through different habitats. And today we are going to learn about characteristics of organisms. Okay? So characteristics means which types of characteristics. That may be about food. Do all organisms need food? Do all organisms show growth? Do all organisms respire? Do all organisms respond to stimuli? Living organisms and excretion. Do all organisms reproduce their own kind? Do all organisms move? And the last and more important question is, what then is life? So in today's class we will find out the answer of all these questions. Okay, let's start. Characteristics of organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals. In activity 1, we listed objects, plants and animals found in different surroundings. तो थोड़ी देर पहले यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जो अलग अलग हैबिटेट्स है उसके बारे में, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव करता है उस हैबिटेट में उसके बारे में। और इस चैप्टर में एक्टिविटी 1 जो था उसमें हम लोग कुछ लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड किए थे some plants and animals found in different surroundings. अलग अलग सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए थे, राइट? Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. तो अगर हम लोग सोचना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें अगर हम लोग देखें कि इसमें कौन सा लिविंग है, कौन सा लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके फॉरेस्ट में जो जो चीज हम लोग देखते हैं उसमें से कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम बताया गया है जो कि फॉरेस्ट में पाया जा सकता है। हो सकता है आप फॉरेस्ट में देखोगे ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस। ये सारे चीज तो देखेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। व्हिच ऑफ दीज आर लिविंग? ये जो लिस्ट अभी बताया गया है इनमें से कौन कौन सा लिविंग है? Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. तो आप अभी आपके आसपास में जो जो चीजें देख पा रहे हैं उनमें से कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे कि हाँ ये मार्कर, दिस मार्कर इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग? आप कहेंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है, राइट? कैसे आप बता रहे हो ये नॉन लिविंग थिंग क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द डेफिनेशन? ये नॉन लिविंग थिंग क्यों बताएंगे आप? In some cases it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Perry was reading these rhymes from Complete Nonsense written by Edward Lear. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट तो आप बहुत आसानी से देख के आप बता सकते हैं yes this is living thing, और कुछ देख के आपको बताने में थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। तो यहाँ पे एक राइम दिया गया है जो कि पैरी ने पढ़ रहे थे। किसने लिखे थे? एडवर्ड लियर ने। Said the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, said the table to the chair. Said the chair to the table, now you know we are not able. How foolishly you talk.
When you know we cannot walk, set the table with a style. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? तो यहाँ पे एक चेयर और टेबल के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, राइट? तो ये कन्वर्सेशन क्या चल रहा है कि चेयर टेबल को बोल रहा है कि हम लोग बैठे बैठे, अब मेरा परेशानी तुम क्या समझोगे, बैठे बैठे थक जाते हैं, थोड़ा अगर चलते हम तो मजा आता, थोड़ा बातचीत करते, थोड़ा लंबी सांस लेते। तो टेबल क्या कह रहा है, ये पॉसिबल थोड़ी है हम लोगों के लिए, तो इन लोगों के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है? Pallant was found the poem very funny because they know that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk. तो यहाँ पे ये पोएम सुन के पहली भोजों को बहुत हंसी आया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि चेयर टेबल जो है वो अलाइव नहीं है, वो जिंदा चीज नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग कभी न चल सकता है न ही वो बोल सकता है। Chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we don't know that we are alive and so are all the people of the world. तो chair, table, stone, coin ये सारे तो alive नहीं है, non living thing है। Similarly, हम लोग ये भी जानते हैं कि हम alive हैं, हम जिंदा हैं, और हम जैसे बहुत मतलब पूरा वर्ल्ड में जो लोग हैं वो सारे जिंदा हैं। We also see animals around us that are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others. तो सिर्फ इंसान के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स को आप देखते हैं जो देख के ही आप बता सकते हैं कि वो जिंदा है, उसमें जान है। How do we know that something is living? तो ये कुछ चीजें जो लिविंग हैं आप कैसे देख के बता सकते हैं? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living, but they do not move like a dog or a pigeon. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। जितना आसान हम लोग सोचते हैं कि कोई चीज जिंदा है आप देख के बता दोगे, उतना डिफिकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि एक ट्रीज जो है, एक प्लांट जो है, वो भी तो मूव नहीं करता एनिमल्स के तरह, वो भी तो नहीं बोलता है। On the other hand, a car or a bus can move. Still we consider them as non-living. और दूसरी तरफ आप अगर देखो कि कोई कार, कोई बस जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग। और प्लांट मूव नहीं कर सकता, फिर भी उसको हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग। Plants and animals appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in size. अब आप कह सकते हैं कि सर प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो टाइम के साथ साथ ग्रो करता है, तो इसलिए इसको हम लोग लिविंग थिंग कह सकते हैं। तो बेटा क्लाउड जो है वो भी तो धीरे धीरे ग्रो करता है, मतलब छोटा सा क्लाउड आप देखते हो, धीरे धीरे क्लाउड बड़ा होते 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 पूरा बड़ा सा क्लाउड बन जाता है, फिर बारिश होना स्टार्ट होता है। तो क्या क्लाउड लिविंग थिंग है? Does it mean that clouds are living? No. So how does one distinguish between living and non-living things? तो ये भी अगर नहीं है, क्लाउड अगर लिविंग थिंग नहीं है, तो आप कैसे डिफरेंसेस बताओगे कि कौन सा लिविंग थिंग है एंड कौन सा नॉन लिविंग थिंग? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? क्या लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसको नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है? You are a wonderful example of a living being. आप खुद लिविंग बीइंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो। What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? आप में इस तरह की क्या अलग है जो कि आपको non-living thing से अलग बनाता है, कुछ खास बनाता है आपको? List a few of these characteristics in your notebook. आपके नोटबुक में कुछ इस तरह की लिखिए जिससे ये डिसाइड हो कि आप लिविंग थिंग हो और आप में और नॉन लिविंग थिंग में ये चीज का डिफरेंसेस है। वीडियो अभी पॉज करेंगे, इसको लिख के व्हाट्सएप में पहले सेंड करेंगे या कमेंट सेक्शन में आप बताइए। Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants. अब वो जो लिस्ट आपने बनाए हैं, उस जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखे हैं जिस लिस्ट में, वो अब प्लांट्स के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ भी कंपेयर करके देखिए क्या उसमें भी ये सारी चीजें दिखता है। Some of these characteristics are perhaps common to all living things.
तो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सारे लिविंग थिंग्स में कॉमन होगा। जैसे कि द फर्स्ट वन इज डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उसको फूड की जरूरत होता है। In chapter 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us। तो chapter 1 and 2 जिसमें फूड के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसमें ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग थिंग्स जो है उसको फूड की जरूरत पड़ता है, फूड एसेंशियल है। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis। तो इसके अलावा हम लोग ये भी देखे हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना सकता है। किस प्रोसेस से खाना बनाता है वो? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स जो है वो अपना फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। तो फूड जो है वो हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए एक तो हमारे ग्रोथ के लिए, दूसरा जो लाइफ प्रोसेसेस जो होता है, जैसे जो एसेंशियल चीजें हैं हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, जैसे सांस लेना, चलना, बोलना, सारे चीजें जो हम लोग करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होता है और एनर्जी हमें मिलता है फूड से। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसको फूड की जरूरत पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। एंड द सेकंड वन इज डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें ग्रोथ दिखाई देता है, क्या ग्रो करता है वो। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। 4 साल पुराना सिर्फ कुर्ता ही नहीं, जो लड़के लोग हो, आपका जो भी कपड़ा है 4 साल का पहले का जो कपड़ा है, क्या वो अभी आप पहन सकते हैं? वो फिट आता है आप में? You cannot wear it anymore, is not it? ये आप कहीं भी तरीके से अच्छे से नहीं पहन सकते, अच्छे से फिट आपको नहीं आएगा 4 साल का पुराना कपड़ा। You must have grown taller during these years। ये 4 साल में आपका ग्रोथ काफी हो चुका है। 4 साल पहले आप जितने छोटे थे, आज के डेट में आप काफी बड़े हो चुके हैं। You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult। तो ये शायद आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपका ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आपका ग्रोथ हमेशा हो रहा है। अभी भी आप थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हो रहे हो और कुछ ही साल में आप एडल्ट बन जाओगे। Young ones of animals also grow into adults। तो एनिमल्स का जो यंग वन है, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी ग्रो होता है और एडल्ट बनता है। You would surely have noticed puffs grow into adults। A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक पफ्स जो है वो ग्रो होकर एडल्ट बनता है। एक चिक यानी कि जो चिड़िया का जो बच्चा होता है, चिक मतलब यहाँ पे हेन का जो है ना, मुर्गी का जो बच्चा होता है छोटा सा, उसको चिक कहा जाता है। तो वो अंडे से निकलता है कितना छोटा सा, और वो धीरे धीरे बड़े होते होते एक टाइम बाद वो एडल्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो हेन या कॉक बन जाता है। Plants also grow। Look around you and see a few plants of a particular type। तो प्लांट्स जो है वो भी ग्रो करता है। आप अपने घर के आसपास में कोई प्लांट्स अगर देखे होंगे, पहले से ऑब्जर्व किए होंगे, तो कितना छोटा था, धीरे धीरे कितना ग्रो कर रहा है। Some are very small and young, some are bigger, they may all be in different stages of growth। तो आपके घर के आसपास में एक ही जैसा प्लांट को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखेंगे एक ही प्लांट, अगर मान लो नीम का पेड़ जो है वही आप देखो, एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, एक देखो कितना बड़ा है, तो कुछ कमजोर होता है, छोटा होता है, कुछ काफी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है ना। तो वो सारे जो है वो ग्रोइंग स्टेज में हैं, सारे के सारे प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है। Look at the plants after a few days and weeks, you may find that some of them have grown in size। तो इसको अगर आप ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कुछ दिन बाद फिर से देखेंगे वही प्लांट्स को, तो आप देख पाएंगे कि वो प्लांट्स फर्दर ग्रो हो चुका है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये जो ग्रोथ है ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो?
क्या आपको लगता है नॉन लिविंग थिंग जो है वो भी ग्रो करता है? नेक्स्ट, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? क्या सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या बिना सांस लेके हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है? बाहर का एयर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? अंदर का जो हवा है वो बाहर निकल जाता है. Breathing is part of a process called respiration. तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी. तो रेस्पिरेशन में जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जो एयर अंदर लेते हैं, उनमें से कुछ ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में यूज कर लेते हैं. वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. और उसके बाद जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, जो कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूटिलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं सांस छोड़ते वक्त. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है कुछ एनिमल्स में जैसे काउ, बफेलो, डॉग, कैट, ये सब में हम जैसे ही होता है ब्रीदिंग. ओके, ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन. तो ये जो एनिमल्स का नाम अभी बताया गया है, ये एनिमल्स अगर कभी रेस्ट करते हुए आपको दिख जाए तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो उसका पेट में आपको मूवमेंट नजर आएगा. सांस लेना और छोड़ने के टाइम पे देखो पेट थोड़ी देर फूल जाता है फिर डाउन हो जाता है, राइट? तो ये मूवमेंट से पता चलता है कि वो सांस ले रहा है. दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग. तो ये जो स्लो मूवमेंट है उसके बॉडी का, उसके एब्डोमेन का, ये क्या इंडिकेट करता है कि वो एनिमल्स ब्रीदिंग कर रहा है. रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशन जो है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है. इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स. तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमें एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलता. खाना आप कितने भी खा जाइए, खाना खाते हैं हम लोग, डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन हमें एनर्जी तब तक नहीं मिलता जब तक कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो. ओके, some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process. तो कुछ एनिमल्स में ये जो गैस का एक्सचेंज, बेसिकली ब्रीदिंग जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ एनिमल्स में दूसरे तरह के हो सकता है, दूसरे तरीके से वो कर सकता है, लेकिन वो भी रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अर्थवर्म को ले सकते हो. अर्थवर्म जो है उसके पास नोज नहीं होता हमारे जैसे ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, तो वो अपने स्किन से ये ब्रीथिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट करता है. फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर. फिश के बारे में आप पढ़े होंगे कि फिश के पास गिल्स होता है, जिस गिल्स की मदद से वो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. तो गिल्स जो है वो ऑक्सीजन, पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है, यूटिलाइज होता है. ओके, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स. यस, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर एंड इट्स टेक प्लेस थ्रू लीव्स. प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये गैस का एक्सचेंज जो है वो लीव्स के थ्रू होता है. द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टी डिप्रोरेस इन देम एंड यूज ऑक्सीजन. तो लीव्स जो होता है प्लांट्स का, उस लीव्स में छोटा छोटा होल्स होता है जिसको आप स्टोमाटा के नाम से जानते हैं. तो स्टोमाटा क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ देता है. क्लियर? We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen.
तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जब होता है दिन के टाइम में प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और बाहर ऑक्सीजन को छोड़ता है। The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. तो जो अमाउंट का ऑक्सीजन रिलीज करता है फूड प्रोड्यूस करते वक्त, यानी कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फूड बनाते वक्त, लेकिन वो क्या करता है, वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेता है अपना जरूरत का जितना ऑक्सीजन होता है और बाकी का जो एक्सेस ऑक्सीजन होता है उसको बाहर छोड़ देता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। तो ये रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में भी हमेशा चलते रहता है। तो दिन के टाइम उसको ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दिन के टाइम में क्या करता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, उसी ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करता है और एक्सेस जो ज्यादा ऑक्सीजन बनता है उसको बाहर निकाल देता है। क्लियर? तो ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। तो 3 पॉइंट हम लोगों को मिल गया है अभी तक, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 इज ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, all organisms show growth and all organisms respire. Okay, and next characteristic is, do all organisms respond to stimuli? How do you respond? आप किस तरह से respond करते हो? If you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot, नंगा पैर आप चल रहे हो, चलते वक्त आपका पैर एक कांटे के ऊपर गिर गया, तो किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे? तुरंत पैर को वहां से हटा लोगे, राइट? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? आप जब अपना फेवरेट खाना सामने देख लेते हैं या फेवरेट खाने के बारे में सोचते हैं, या स्कूल से आप बहुत थके हुए घर जा रहे हैं और घर पे जाते हुए उस आपका फेवरेट जो खाना है उसका स्मेल बाहर से आपको मिल रहा है, तो क्या करते हो? और आपके मुंह में पूरा पानी आ जाता है, राइट? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. अब जब पूरा अंधेरा एक रूम में से निकलते हुए एक खुला आसमान में बहुत ज्यादा धूप के अंदर आप जा रहे हो, तो आपका जो आंख जो इतना छोटा छोटा हो जाता है, राइट? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings. तो आपका आंख बंद हो जाता है और धीरे धीरे आप उसको ओपन करते हैं, उस बाहर का जो ब्राइट सनलाइट है उसको एडजस्ट करते हैं आपका आंख। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थ्रॉन। इन द अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो अभी ये जो 3 सिचुएशन आपको बताया गया है, एक तो आपका फेवरेट फूड जो सुन के देख के या स्मेल लेके आपके मुंह में पानी आ जाता है, दूसरा थ्रॉन के ऊपर कांटे के ऊपर आप अपना नंगा पैर रख देते हैं, तो क्या होता है पैर अचानक से आप उठा लेते हैं, और एक जो है आप अंधेरा रूप से लाइट के अंदर जा रहे हो, तेज लाइट के अंदर, तो क्या होता है आपका आंख अचानक से छोटा छोटा हो जाता है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, आपका सराउंडिंग में चेंजेस हो रहा है, राइट? All of us respond immediately to such changes. तो इस तरह के चेंजेस अगर होता है तो हम लोग immediately रेस्पॉन्स कर देते हैं, शायद हम लोग बिना सोचे समझ के रेस्पॉन्स कर देते हैं। Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो हमारे आसपास का जो चेंजेस है जो हमें रेस्पॉन्ड करने में मजबूर कर दे, इस तरह की सिचुएशन को हम लोग स्टिमुली कहते हैं। Do other animals also respond to stimuli? क्या बाकी का जो एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिजम्स है, वो भी स्टिमुली करते हैं? Observe the behavior of animals when food is served to them. तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई एनिमल्स घर पे अगर कोई पालतू डॉग है, पेट एनिमल्स अगर कुछ है, तो उसको जब आप खाना सर्व करते हैं तो उसका बिहेवियर आप देख सकते हैं। Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? एक डॉगी सो रहा है, जब खाना आप लाके सामने रखे तो अचानक से उठ के दौड़ के जाते हैं ना, तो ये क्या है उसमें एक मतलब वो रेस्पॉन्स कर रहा है, सडनली रेस्पॉन्स कर रहा है, राइट? तो यही स्टिमुली होता है। When you move towards a bird, what does it do? एक बर्ड्स की तरफ जब आप चल के जाते हो तो क्या करता है वो बर्ड्स? उड़ जाता है ना तुरंत। Wild animals run away when bright light is flashed towards them. तो जो वाइल्ड एनिमल्स है उसके तरफ अगर आप ब्राइट लाइट को फ्लैश करोगे तो भाग जाते हैं वहां से। Similarly, cockroaches begin to move to their
hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. रात के टाइम पे अगर आप किचन में चले गए, लाइट का स्विच ऑन किया और वहां पे अगर कॉकरोच था तो वो तुरंत भाग जाता है वो छींकने के लिए. कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली? इस तरह की क्या और एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जिसमें एनिमल्स का स्टिमुली शो करता है? ऑब्वियसली देना है, सोचो, सोच के एग्जांपल दो. ओके, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या आपको लगता है प्लांट्स भी स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता होगा? ऑब्वियसली करता है. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट. कुछ प्लांट्स का फ्लावर्स जो है वो उसका महक जो है वो रात के टाइम पे ही होता है. इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट. कुछ फ्लावर में आप देखोगे कि सनसेट के बाद फ्लावर्स जो है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा commonly known as touch me not, leaves close or fold when someone touches them. तो एक प्लांट्स होता है जिसका नाम है टच मी नॉट. ओके, उसको अगर आप टच कर दो तो उसके सारे लीव्स क्या करता है, बंद कर देता है ना. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स है जिसमें प्लांट्स में भी स्टिमुली होता है. ये एग्जांपल्स है उसका. Next, activity 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. तो एक potted plant अपने रूम में लेके रखने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पे एक छोटा सा होल हो या कोई छोटा सा विंडो हो जहाँ से सनलाइट दिन के कई एक टाइम में थोड़ा बहुत अंदर आ रहा हो. Continue watering the plant for a few days. कुछ दिन के लिए उस प्लांट को पानी देते रहना है. Does the plant grow upright like plants out in the open? Note the direction in which it bends. If it is not growing upright, do you think this may be in response to some stimulus? All living things respond to changes around them. तो जब आप पॉटेड प्लांट को अंदर रखोगे, उसमें रेगुलरली पानी डालोगे तो धीरे धीरे उसका ग्रोथ जब होने लगेगा तो ग्रोथ आप अगर फॉलो करोगे तो ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है. हमेशा क्या देखते हैं, प्लांट का ग्रोथ अपर डायरेक्शन में होता है लेकिन इसका ग्रोथ जो है अपराइट डायरेक्शन में नहीं होगा. इसका ग्रोथ देखोगे जिस साइड में विंडो है उसी साइड में इसका ग्रोथ होता है. क्यों? क्योंकि उस विंडो से सनलाइट आता है. तो यहाँ पे भी ये शो कर रहा है स्टिमुली में रिस्पॉन्स करते हुए, राइट. तो इससे क्या पता चलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्ड करता है अपने सराउंडिंग में जो चेंजेस होता है उसमें वो रिस्पॉन्ड करता है. तो ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रिएशन. अब एक्सक्रिएशन का मतलब आप लोगों को पता ही है पहले से. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटेन इज कंप्लीटली यूज्ड. तो जो फूड हम लोग खाते हैं क्या सारे के सारे हम यूज कर लेते हैं, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा फूड यूटिलाइज हो जाता है हमारे बॉडी में? ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. उस फूड का जितना फूड हम लोग खाते हैं उसका एक पार्ट ही सिर्फ हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में. व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट? बाकी बचा हुआ जो फूड है उसका क्या होता है? पूरा तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर जाते, पूरा तो यूटिलाइज नहीं कर जाते. तो जितना बचा हुआ फूड है उसको वो क्या होता है बाद में? दिस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट. तो ये जो बचा हुआ जो फूड है जो हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो एज ए वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से. और बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो. तो हमारा बॉडी एक तो ये फूड का जो वेस्ट है इसको बाहर निकलता है और इसके अलावा हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, बाकी जो वर्क होता है हमारे बॉडी में उसमें भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है. ओके, The process of getting rid of waste by organisms is known as excretion. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहा है इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं. Do plants also excrete? क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करता है? They do, but not as seen in animals. Yes, प्लांट्स भी एक्सक्रिएट करता है लेकिन एनिमल्स में जैसे दिखता है एक्सक्रिएट करते हुए, प्लांट्स में इस तरह नहीं दिखता. The mechanisms in plants are a little different. प्लांट्स का जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीट करने का वो थोड़ा सा अलग है.
Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपने एक पार्ट में, बॉडी के एक पार्ट में स्टोर कर लेता है ताकि पूरा प्लांट्स के बॉडी में इसका इफेक्ट ना आए और वो खराब ना हो. Some plants remove waste products as secretions. तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रेशन के तौर पे सीक्रेट कर देता है, ओके, बाहर निकाल देता है. एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स. तो एक्सक्रीशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, ओके. अब प्लांट्स का एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाया तो मैं क्लियर करने के लिए बता दूं कि प्लांट्स का देखोगे, कुछ प्लांट्स का लीव्स जो है वो गिर जाता है ना. तो वो जो लीव्स गिरता है ना, उस लीव्स में स्टोर क्या हुआ रहता है ये जो अनवांटेड जो प्रोडक्ट है, ओके, इसको स्टोर करके रखता है और फिर वो लीव्स गिर जाता है. कुछ प्लांट्स का देखोगे बर्क गिरता है ना, उसका जो छाली होता है, छाली कहते हैं आई थिंक हिंदी, तो उसको गिरा देता है. तो वहाँ पे जो ये एक्सक्रीट होता है वो सारी चीजें वहाँ पे स्टोर करके रखता है और वो गिर जाता है तो उसके बॉडी से वो रिमूव हो जाता है बाहर, ओके. Then the next characteristic, do all organisms reproduce their own kind? या सारे के सारे organisms reproduce करता है अपने जैसा दूसरे को. Have you ever seen nest of some birds like pigeons? Birds का nest आप कभी देखे हो? Many birds lay their eggs in the nest. बहुत सारे birds क्या करते हैं, अंडे देती हैं अपने nest में. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. तो ये जो एग्स देती है, जो अंडे देती है, इस अंडे से कुछ अंडे टूट के वहां से छोटे बेबी बर्ड्स जो है वो बाहर आता है, राइट. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. एनिमल्स जो है वो भी अपने जैसे दूसरे रिप्रोड्यूस करते हैं. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. तो ये रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन रिप्रोडक्शन होता सब में है. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि अंडे देके अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बच्चे का जन्म देते हैं. प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो डिफर इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो एनिमल्स में जैसे अलग अलग तरह की मोड है रिप्रोड्यूस करने का, उस तरह प्लांट्स में भी होता है. Many plants reproduce through seeds. बहुत प्लांट्स होता है जिसका सीड से रिप्रोड्यूस होता है. प्लांट्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीड्स लगा देते हैं, उसमें से जर्मिनेट होके नया प्लांट आता है. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स व्हिच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है और उस सीड से नया प्लांट्स का जन्म होता है. Some plants also reproduce through parts other than seeds. तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सीड छोड़ के दूसरा पार्ट से भी नया प्लांट्स का जन्म देता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. जैसे कि पोटैटो का जो बार्ड्स होता है उस बार्ड से न्यू प्लांट्स ग्रो करता है. प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स. तो प्लांट्स का जो स्टेम काट करके भी न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा. वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? क्या इस तरह से आप एक प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहते हैं कि प्लांट्स के एक बॉडी पार्ट्स को, एक स्टेम को काट के नया प्लांट्स ग्रो करवाना चाहते हैं? तो एक्टिविटी 5 देखो. टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और मेहंदी प्लांट. तो आपको रोज प्लांट अवेलेबल होगा सबके घर में, तो रोज प्लांट का एक स्टेम आपको काट लेना है. फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली. अब काट करके उसको सॉइल में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें लगा देने हैं, ओके, और उसको रेगुलरली वाटरिंग करने हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज? कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे? इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स. हो सकता है ये उतना इजी ना हो. डू नॉट बी disappointed if your cutting does not grow. तो आप जो लगाए हैं रोज का स्टेम, हो सकता है वो ग्रो नहीं किए, तो इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं. टॉक टू गार्डनर if possible on the care to be given to cuttings to make them grow into plants.
तो अगर आपका प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहा है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। कोई गार्डनर अगर है तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं, या फिर घर पे कोई बड़े लोग हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से ग्रो किया जाता है स्टेम काट के। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने जैसे दूसरे का जन्म देते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन होता सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। क्लियर? नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आप सबको पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? इन चैप्टर 8 we discussed the various ways in which animals move। तो चैप्टर 8 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अलग अलग एनिमल्स है वो किस तरह से मूव करता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। तो एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करता ही है, उसके साथ साथ अलग मूवमेंट भी इसमें नजर आता है। जैसे अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ लेकिन मेरा हाथ को देखो मूव करा रहा हूँ, तो ये भी मूवमेंट है। What about plants? प्लांट्स का क्या? Do they also move? क्या प्लांट्स भी मूव करता है? Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another। प्लांट्स जो है वो तो आपको पता है कि सॉइल में उसका रूट्स जो है फिक्स रहता है, तो इसके कारण वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other। लेकिन प्लांट का रूट्स फिक्स होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, लेकिन प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो फूड है, मिनरल है, ये सारे चीजें उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव करता है। ये तो आपको पता है कि लिप्स में जो खाना बनता है वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, तो ये भी तो मूवमेंट है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या प्लांट्स का और दूसरे कोई मूवमेंट आपको नजर आया? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का ओपन होना, क्लोज होना। थोड़ी देर पहले बताया गया था कि कुछ प्लांट्स जो है वो सनसेट के साथ साथ ही क्लोज हो जाता है, फिर अगले दिन सनराइज होता है तो ओपन हो जाता है। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? तो मूवमेंट जो है कुछ स्टिमुली में थोड़ी देर पहले बताया गया, खिड़की के पास में आप अगर एक पॉटेड प्लांट को रखोगे, उसको रेगुलरली वाटरिंग करोगे रूम के अंदर रख के, तो क्या होगा, उसका मूवमेंट जो है वो विंडो की तरफ बढ़ेगा। We also have some non-living things moving, of course, a bus, car, a small piece of paper, clouds, and so on। तो लिविंग थिंग्स का मूवमेंट तो समझ में आ गया आप लोग, लेकिन आप लोग कैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी तो मूव करता है, कार मूव करता है, बस मूव करता है, क्लाउड एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, राइट? Is there something different in this movement from the movements of living beings? तो लिविंग बीइंग्स का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये नॉन लिविंग बीइंग्स का जो मूवमेंट है क्या कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed। तो यहाँ पे कितना वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन सब में ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अभी डिस्कस किए। Yet another common characteristics is that living beings die। तो एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे लिविंग थिंग्स में जो कि मर जाना। जो जिंदा चीजें हैं वो कभी ना कभी मरेगा। Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind। तो पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो थाउजेंड्स इयर्स तक सरवाइव कर सकता है रिप्रोड्यूस के थ्रू। एक इंसान कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? 80, 90, 100 इयर्स, उसके बाद तो मर जाएगा, लेकिन वो अपने जैसे दूसरे इंसान को जन्म देके जाता है। One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction। तो एक इंसान या एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जा सकता है, लेकिन वो अगर रिप्रोड्यूस करके जाता है तो उस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स है वो लंबा समय तक सरवाइव कर सकता है। क्लियर? कि एक डॉग मर गया, लेकिन मरने के पहले वो अगर कुछ बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे ने बड़ा होकर फिर कुछ बच्चे को जन्म दिया, तो इस तरह से वो जो डॉग का जो
ग्रुप है वो सर्वाइव लंबे समय तक करेगा, लेकिन पर्टिकुलर एक डॉग बहुत पहले मर जाता है ना। We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे। क्या क्या था वो? एक तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है। दे रेस्पायर, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। स्टिमुली में रिस्पॉन्ड करता है, रिप्रोड्यूस करता है, मूवमेंट दिखता है और ग्रो भी करता है और मर भी जाता है। ओके, डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ हमें दिखेगा? कार्स, बाइसाइकिल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। तो जो कार है, बाइसाइकिल, क्लॉक, वाटर जो है रिवर का वो मूव करता है। तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो तो दिखता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी इसमें दिखता है। द मून मूव्स इन द स्काई, मून जो है वो भी मूव करता है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। तो क्लाउड जो है वो साइज में ग्रो करता है, ये आप आपके आंखों के सामने देख सकते हैं। एक छोटा सा क्लाउड है, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या इस तरह की चीजों को हम लोग लिविंग कह सकते हैं? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? तो इस तरह की सिचुएशन अगर आए आपके सामने तो तब आपको खुद को पूछना है कि यस, यहाँ पे क्लाउड जो है वो तो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो क्या बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लाउड में है? यानी क्लाउड क्या क्लाउड को खाने की जरूरत है? क्या क्लाउड मूव कर रहा है? हाँ, आप कहोगे हाँ सर, क्लाउड मूव भी करता है, ग्रो भी करता है। तो क्या क्लाउड जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? क्या क्लाउड जो है वो सांस ले रहा है? तो हमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैच करा के देखना है कि सारी चीजें हो रहा है। इन जनरल, समथिंग दैट इज लिविंग may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो इसमें क्या होगा कि लिविंग थिंग्स में आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसमें एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स भले ही नजर आए, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं रहेगा, तो वो नॉन लिविंग थिंग होगा। ओके, इज दिस ऑलवेज ट्रू? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? क्या ये हमेशा के लिए सच है? क्या लिविंग थिंग में ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएगा हमेशा जो अभी हम लोग डिस्कस किए? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? क्या non-living things में सिर्फ कुछ ही characteristics इसमें से नजर आएगा, बाकी सारे जो characteristics है वो कभी भी नजर नहीं आ सकता? तो एक non-living things में क्या ऐसा है? To understand this a little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moon, is it living? तो इसको अच्छे से समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेके आपको समझाया जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे एक सीड आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, जैसे एक मूंग का सीड, क्या वो लिविंग थिंग है? इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो एक मूंग का जो सीड है वो शॉप में महीने भर रह सकता है, तो क्या वहां पे उसका ग्रोथ दिखता है? दिखता है? However, we bring the same seed and plant it in soil, water it, and it turns into a whole plant. तो अब उस दुकान में पड़ा हुआ वही सीड को आप लाके अगर उसको लगाए जमीन पे और उसमें पानी देने लगे रेगुलर, तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है और एक प्लांट बन जाता है। Did the seed need food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? तो ये सीड जब तक उस दुकान में था इतने दिन से, तो क्या वो सांस लेता था? क्या वो खाना खाता था? क्या उसमें कोई ग्रोथ था? क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा था? नहीं ना। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये उतना आसान नहीं है कहना
कि कौन सा चीज लिविंग है, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा सारे लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। सीड जो कि लिविंग थिंग्स है लेकिन होते हुए भी उसमें कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा था, कोई सांस लेते हुए आपको नहीं दिख रहा था, उसको मूव करते हुए नहीं दिख रहा था, उसको रिप्रोड्यूस करते हुए आपको नहीं दिख रहा था। क्लियर? व्हाट देन इज लाइफ? लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वेट। वेट सैक के अंदर आपका हाथ को अंदर की तरफ पुश करने के लिए बोला जा रहा है। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? मतलब एक बोरा में मान लो गेहूं भरा हुआ है, उसके अंदर हाथ आप डाल रहे हो, जितना दूर पॉसिबल हाथ डाल रहे हो, तो क्या अंदर आपको गर्म महसूस होगा? There is some heat being produced inside the stack of weight. तो वेट स्टैक जो है उसके अंदर आपको थोड़ा गर्म महसूस होगा। The seeds respire and in that process give out some heat. तो वो जो सीड है वो रेस्पायर कर रहा है, जिससे वो रेस्पायर करके क्या बाहर क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसलिए वो पूरा के अंदर वो गर्म महसूस होता है आपको। We see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life process may not be very active. तो respiration जो है ये आपको सीड में दिखाई दे रहा है ना? जहाँ की बाकी जो था उसके साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको भले ही नहीं दिखाई दे रहा हो या वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन respiration हो रहा है उसमें। It may not be very easy to answer our question, what then is life? तो ये क्वेश्चन का आंसर उतना आसान शायद नहीं है कि लाइफ क्या है फिर। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो ये हमारे चारों तरफ इतना डाइवर्सिटी, इतना अलग अलग वैरायटी आप देखते हुए, ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए आप एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं, व्हाट इज लाइफ? इसका आंसर आप शॉर्ट में दे सकते हैं, क्या? लाइफ इज ब्यूटीफुल। क्लियर? तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन चैप्टर 9. ओके, आई थिंक यू have understood whatever I discussed in today's class. If there is any doubt, kindly ask me through WhatsApp, through calling, okay? And write down the hard words in your fair copy, write down its meaning properly, and obviously English to English meaning. And after that, write down the keywords also, okay? Next day we will discuss the exercise. So for now, bye. Have a good day.